Hello, good morning students. This is Neeraj Paul from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Once again, I welcome you to online classes. Students, yesterday I have explained some important questions related to upcoming examinations that can become in your upcoming examination. And today I am going to explain some more important questions that can become in your upcoming examination. So you have to look at the board very carefully. Today I am going to explain, take the correct answer. It is very important. So you have to concentrate your mind here. Students, as you all know, schools are closed due to DM order, but we have to learn daily. We don't have to break our study. If you are at home, then your destiny is to learn. You don't have any extra work, you have to learn only. So, in the series of revision, today I am going to revise chapter 1, some important questions that I have already mentioned on the board. One by one, I will tell you what is the answer and related topics I will also explain. So students, this questions is from chapter 1. So first of all, we need to know what is the chapter 1. Chapter 1 is computer languages. Okay, first of all we need to know what is a program. Students, a computer needs specific instruction to perform a task or functions. अगर हम कंप्यूटर्स को कोई एक्टिविटी करने के लिए कुछ कहते हैं तो सबसे पहले उसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत होती है. A computer need specific instruction to perform a task or any functions. These set of instruction are called program. ये जो इंस्ट्रक्शन का सेट होता है ये प्रोग्राम कहलाता है. The set of instruction is called program or software. Okay, and the process of developing a set of instruction to enable a computer to do a particular task are called programming. Clear? Students, each programming language has its own set of rules. Programming language can be broadly classified into 5 categories. Programming language is classified into 5 categories. There are 5 computer languages. First is first generation language, second is second generation language, third is third generation language, fourth is fourth generation language, and fifth is fifth generation language. Clear? There are 5 generation of computer. How many generation of computer? 5 generation of computer. And there are 5 computer languages. 5 generations हैं कंप्यूटर्स के. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. सिमिलरली जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो भी 5 हैं. कितने हैं? 5. फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. क्लियर? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो था, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं फर्स्ट जीएल. क्या राइट करते हैं? फर्स्ट जीएल. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को हम शॉर्ट फॉर्म में राइट करते हैं सेकेंड जीएल. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में राइट करते हैं थर्ड जीएल. एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में राइट करते हैं फोर्थ जीएल. एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में राइट करते हैं 5GL. क्लियर? स्टूडेंट्स, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज
is also known as machine language. As you all know students, computer understand only binary digits are machine language. And machine language is also known as low level language. It means you can say first generation language is known as machine language and machine language is known as low level language. क्लियर? मतलब ये जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, इसी को हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं और इसी को लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं. क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट, that is second generation language. One more thing students, low level language, that short form is LLL. LLL. Look here, LLL, triple L अगर आपको कहीं दिखे, it means L is stand for low, second L is stand for label, and third L is stand for language. It means its full form is low level language. आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है, सॉरी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल एल. ठीक है, अगर इस तरह से देख दिया जाए ट्रिपल एल और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LLL, सो यू हैव टू राइट लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है, क्वेश्चंस देखिए ऐसे ही बनते हैं. जो भी टीचर्स जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो वो क्वेश्चंस को पिक करते हैं. ठीक है, और वही क्वेश्चन आपको उठा करके दिया जाता है. देखिए यहाँ पे जो है अब ये क्वेश्चन एक बन गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LLL. ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज, सिंपल है. ठीक है, अभी आगे और भी बहुत सारे जो है हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म्स मिलेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट विल बी फुल फॉर्म ऑफ दैट शॉर्ट फॉर्म. ओके, ये भी देखिए एक आपका शॉर्ट फॉर्म है. फर्स्ट GL अगर आपको कहीं दिख जाए, सेकेंड GL दिख जाए, थर्ड GL दिख जाए, फोर्थ GL दिख जाए, फिफ्थ GL दिख जाए, और आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 5GL. क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 5GL, तो आप क्या देंगे? फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. योर आंसर विल बी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए थर्ड GL का फुल फॉर्म बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ थर्ड GL, तो आंसर आपको देना है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज. स्टूडेंट्स, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज असेंबली लैंग्वेज. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज जो है असेंबली लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है. इसी तरह थर्ड जनरेशन लैंग्वेज is also known as high level language. High level language, that short form is HLL. That short form is HLL. Okay, look here, HLL. HLL. H is stand for high, L is stand for level, and third L is stand for language. ओके, ये भी आपका एक फुल फॉर्म है HLL. HLL is stand for high level language. दो फुल फॉर्म आपका तैयार हो गया, एक आपका LLL लो लेवल लैंग्वेज और एक आपका HLL हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, अब जो आपका फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज होता है, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल लैंग्वेज. दैट शॉर्ट फॉर्म इज AI. अभी जो एग्जाम हुए थे उसमें मैंने क्वेश्चन दिया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI. उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया था. AI इज स्टैंड फॉर
artificial intelligence. AI is stand for artificial intelligence. Clear? So students, you have to learn these full forms that can become in your upcoming examinations. Clear? Now come to the question. Question is asking how many generation can computer language be classified into? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर जनरेशन के जो लैंग्वेज हैं, ठीक है, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या फिर कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अब तो आंसर आपको पता हो गया होगा, 2। ऑप्शन नंबर ए है 2, ये हमारा आंसर है नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 4, ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में है 5, ये हमारा राइट आंसर है। देयर आर 5 जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो 5 जनरेशन में है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। एक सेकंड, लेट मी रीड दिस। Question number 2 is, this generation of language uses mnemonic code. Okay, students, second generation language, that is also known as low level language. Second generation language is also known as low level language, or you can also say this assembly language. Students, assembly language is also regarded as low level language. In an assembly language, programming are written using mnemonic code instead of 0 and 1. इसमें जो है 0 and 1 की जगह पे mnemonic code राइट किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए एडिशन है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अगर एडिशन है, एडिशन का मैन्युअलिक कोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा ADD। इसी तरह से सबट्रैक्शन है, सबट्रैक्शन का आपका जो है मैन्युअलिक कोड हो जाएगा SUB, ठीक है। उसमें से शॉर्ट फॉर्म में जो है 2-3 लेटर जो होता है वो मैन्युअलिक कोड होता है। डिवीजन में आपका जो है DIV मैन्युअलिक कोड हो जाएगा। इसी तरह सबट्रैक्शन में SUB, मल्टीप्लिकेशन में आपका हो जाएगा MUL, ठीक है। जो फर्स्ट के 3 लेटर्स होते हैं वही मैन्युअलिक कोड होते हैं। जैसे एडिशन में देखिए, यहाँ पे एडिशन में फर्स्ट के ये 3 लेटर ADD, ये आपका मैन्युअलिक कोड है। सबट्रैक्शन में SUB, ये फर्स्ट 3 लेटर मैन्युअलिक कोड है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में MUL, ठीक है, ये 3 जो लेटर्स होते हैं फर्स्ट के, ये मैन्युअलिक कोड होते हैं। तो जो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है, ठीक है, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में मैन्युअलिक कोड का यूज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में मैन्युअलिक कोड का यूज किया जाता था। और मैन्युअलिक कोड मैंने आपको बताया कि जो भी वर्ड होता है उसका फर्स्ट 3 लेटर मैन्युअलिक कोड होता है, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में मैन्युअलिक कोड का यूज किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया कि सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज डैश डैश डैश। अब आप वहां क्या फिल करेंगे? थिंक एंड गिव मी आंसर इन कमेंट। ओके, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज असेंबली लैंग्वेज। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। Question number 3rd is, which of the following is not an example of high level language? Okay, high level language 4th generation language है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है आपका वो 4th जनरेशन लैंग्वेज है।
ऑप्शंस आर मशीन, कोबोल एंड जावा। ऑप्शंस दिए हुए हैं मशीन, कोबोल एंड जावा। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया जो मशीन लैंग्वेज है ये फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है हाई लेवल लैंग्वेज का इसमें से कौन सा ऑप्शंस जो है सही है। सॉरी, क्वेश्चन इज आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो 3 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं मशीन, कोबोल एंड जावा, इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है उसे मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज आता है। तो ये जो मशीन लैंग्वेज दिया हुआ है ये हाई लेवल लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, इसलिए हमारा यही आंसर जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज which of the following does not translate the entire program at once? Let me hear this. Okay, look at the question. Okay students, question number 3, which of the following does not translate the entire program at once? Options are assembler, compiler and interpreter. असेंबलर के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। व्हाट इज असेंबलर? स्टूडेंट, एन असेंबलर ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। Assembler translate the assembly language program into machine language program which can be understand by the processing. Suppose that assembly language program आप इनपुट करते हैं तो assembler उसे assemble करता है और आउटपुट देता है हमें मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। Compiler is a language translator program which convert a high level language program into machine language. Compiler क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है। भले ही आज के समय में कंप्यूटर डेवलप्ड होते चले गए हैं, ठीक है, बट जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है। तो जो 5th जनरेशन लैंग्वेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी जो है ट्रांसलेटर के थ्रू जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसी तरह से जो 4th जनरेशन का लैंग्वेज है कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो आंसर, सो असेंबलर लैंग्वेज नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग, बी इज आल्सो रॉन्ग, इंटरप्रेटर इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम एट वंस? ये असेंबलर एंड कंपाइलर तो एक ही बार में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, बट ये जो इंटरप्रेटर है ये स्टेटमेंट वाइज जो है ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, इंटरप्रेटर इज द राइट आंसर। Okay students, now next question I will explain in my next video lecture. आज के लिए बस इतना ही। Till then students, goodbye. Thank you for watching videos. Bye bye everyone.